In Venn diagram, we will be seeing something relation between some data, whatever they will be providing. So representation of something in a pictures, then by that we will be finding the relation. Now here I have been provided 3 words. This is a random question. This is a just example we are taking for understanding the Venn diagram. One is the alphabet, another is vowels, another is the natural numbers. Now if you will see, natural numbers are what? Start from 1, 2, 3, okay, till infinity they will be. Alphabets are what? They are starting from A up to Z. Now if I will say vowels are what? A, E, I, O, U, only these 5. Means we know all vowels are inside the alphabet. If I will be representing them in the Venn diagram, so if I am representing this as alphabet, so vowels will come inside this because all the vowels are the alphabet. Now something natural numbers I am having, but you know there is no relation between natural numbers and alphabet nor with the vowels. That means natural numbers will be different. Means between a relation between or Venn diagram between alphabet, vowels, natural numbers will be this. This is the natural number, this is the alphabet, this is the vowels. Like this we will find the relation between few data, whatever they will be giving the information with them. Okay, let's take one more question here. There, first question, if you will see, vehicle, car and bus. We know car and bus both are different thing. Car and bus are not having anything common. So this is the car, this is the bus. Now vehicle is what? All car, all bus will be inside this. So we will be representing this data like this. This will be this. Now, which type of questions you can expect in the TA or the FCAT? They will be just giving you this data and they will give you 4 diagram or 3 diagram and they will ask which will be the relation between them, which will be the Venn diagram for them. Okay, now same way if you will see here, lawyer, teacher, educated. So whoever is educated, that means if lawyer is there, that will also will be educated. If teacher is there, that also will be educated. So all the inside the educated, lawyer and teachers will come, because if you someone is teacher, that definitely will be educated. Now in such case, some cases you will be getting some exception. So always ignore that. Just ignore that exception. Don't go. If you will thinking for that exception, then your answer is going to be definitely incorrect. And don't use extra mind in this reasoning. Just whatever you see in that car, lawyer, teacher, just go with the basics. If you will try extra mind, then definitely you will do the mistake. Okay, let's try to make the diagram between female, doctor and the mother. Now we know one thing, if someone is mother, she definitely will be female. That means inside the female, mother will be there. Okay, now this is the mother, you can say this is the female. Now you are having the doctor. Now some female can be doctor and there will be some female which will not be doctor. Same way some mother also will be doctor. That means some part of the female and the mother you will need to take the doctor. Now you will say, sir, why you have taken? Because this is the doctor who are the male or transgender. We will normally take the male and female only. Okay. So here this is the mother, female, and this will be the doctor. So like this we will be getting the relation. Okay. First, try the first question. A, B, C, D. What will be the answer for this? A. A. Okay, simple. What will be the answer for the? Oh yes, do the second one. D. 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 Simple, because cow will come inside the mammals and crow अलग हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा. इस बीक डे ईयर के अंदर बीक और बीक के अंदर आता है डे. ओके. Fruit, plums and tomato. So 2 circles in a circle. And let me minimize. 2 circles in a circle, so you can tell the option number A, B, C, D. Sir, B. B. Sir, Okay. if we assume that tomato is also a fruit biologically. 9th answer is B. Yes, sir. So. Okay, let's try the 5th one. No vowels,
word with one vowels, word with two vowels. Sir, D. D. Yes, sir. Okay, anyone getting any different answer for this? Sorry. किसी का कोई और आंसर है फिफ्थ का? So somebody saying A. A. Okay. So here, चलो एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते. क्या बोल रहा? Words with no vowels. If you are having a word which is not having any vowels, okay, that means let me take an example T, T, P. No, this is a word. In this no vowels. Another word with one vowel. Here you are having one vowel. Let me say the T, O, P. But here they are telling with one only. And I am having another word with the two vowels. Okay, now if I will take the two vowels, now you can see this. If you will say, it will not come inside this category, क्योंकि ये category अलग होगा. यहाँ पे केवल एक ही vowel है, और जिसमें two vowels होगा वो इसके अंदर नहीं आएगा. इसका आंसर होगा C, ना कि A ना D. अगर इसी में क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूं, if I will just modify some small part, that here with one vowels, if I will say here words with maximum two vowels, if I will just replace this word, words, yes, third sentence, words with maximum two vowels, means inside this condition minimum one वाले भी आ जाएंगे और zero वाले भी आ जाएंगे. तो उस कंडीशन में तुम्हारा आंसर A और D भी हो सकता था, but here or D, but here the three are the different things. I think the point is clear for everyone. Yes. Let's try the 14th one. Which of the diagram represent the statement some musician are teacher? Some teachers are player, but no musician is a player. Sir, D. D. सभी का D. चलो देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा. Some musicians are teacher. चलो कुछ हमारे ये musicians हैं, तो कुछ musicians हमारे teacher भी होंगे. ठीक है. Some teachers are player. तो कुछ teachers हमारे player भी हैं. कुछ teachers are player. Okay. They are telling, but no musician is player. Okay, there is no common thing between musician and player. If they will not write this sentence, then it can be A. But यहाँ पे उन्होंने बोल दिया, but no musician, कोई भी musician and is not player, means there will not be anything common between musician and player, and that is only option D. You getting? And if they have used the word some, इसीलिए हमने थोड़ा सा पार्ट लिया, पूरा पार्ट कॉमन नहीं किया. Are you getting my point? So जो भी स्टेटमेंट वो बोलेगा उसी तरीके से क्वेश्चन है. आसान क्वेश्चन होते हैं, जस्ट लॉजिक थोड़ा सा लगाना होता. थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आइडिया लग जाएगा. चलो यहाँ पे एक और देखते हैं. 15th देख लेते. Rivers, canals, perennial source of water. A. Okay. किसी का कोई और आंसर? सर सी नहीं आएगा फिर. अच्छा, जो नहर है वो नदी है क्या तुम्हारी? नहीं सर, है तो पानी है ना. अरे रहता तो पानी है, लेकिन नदी जो है वो अलग चीज है, नहर अलग चीज है पानी. यूज दोनों का सेम है, लेकिन नदी नदी है भाई, नहर नहर है. नदी ह्यूमन मेड, नदी नेचुरल है, कैनाल ह्यूमन मेड है. तो दोनों चीजें कॉमन नहीं है. नदी अलग है, कैनाल अलग है, तो ये दोनों चीजें तो अलग अलग हो गई. ठीक है, क्योंकि ऐसा तुमने देखा कि जो नहर है उसको नदी है, फिर एक ही चीज रख देते, फिर हमने दो नाम क्यों रखे अलग अलग. फिर है पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर. तो जो पानी का सोर्स है हमारी जमीन पर, तो वो क्या है, रवि नदी भी है, कैनाल भी है, यानी ये सभी किसके अंदर आ जाएंगे, वाटर सोर्स के अंदर. करेक्ट. तो आंसर हमारा हो जाएगा A फॉर अहमदाबाद. ठीक है. डाउट? 24th. A. Males, doctors. Okay. C. Sir, 23rd करें 24th. अच्छा, कौन सब 23rd कर रहे हैं 24th? 24th का है 24th. अच्छा चलो पहले 24th डिस्कस कर लेंगे, फिर 23rd पे आ जाएंगे. ठीक है. सो एवरीवन गिव द आंसर फॉर 24th. मेल, डॉक्टर और ब्रदर. Sir, A.
ओके, बिकॉज मेल जो भाई होगा वो मेल ही होगा, सो इनसाइड द ब्रदर दैट विल बी द मेल। ओके, सो ये मेल हो गया, सॉरी ये मेल हो गए, ये ब्रदर हो गया, और डॉक्टर हमारा भाई भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है, तो आंसर ए हो गया। ओके, 23rd पे आ जाओ आप सभी। सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, मतलब स्पीड में सीख रहा है, यू ऑल लर्निंग फास्ट, गुड। सर सी। ओके, कुछ का बी है, ओके, अमित का बी है, श्रुति का सी है, नहीं मेरा डी है। अच्छा डी है देर। चलो एक काम करते हैं ना, ABCD में सुनने में दिक्कत हो जाती है, सो ऐसे बोला करो, आगरा, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली। Sir, my answer is D. डी, Yes, sir. ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आइडेंटिफाई द डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट रिलेशंस बताना है सोडा वाटर और मिनरल वाटर। तो सोडा वाटर अलग चीज है और मिनरल वाटर अलग चीज है। मिनरल वाटर हम नॉर्मल पीते हैं, सोडा वाटर तो भाई पार्टी में पीते हैं, तो सोडा वाटर अलग हो गया, मिनरल वाटर अलग हो गया, हाथ पीते दोनों ही है और दोनों लिक्विड है, तो हमारा आंसर देहरादून हो जाएगा। सोडा वाटर मिनरल वाटर कभी कॉमन नहीं आता, देखा होगा, सोडा की अलग बोतल आती और मिनरल अलग होता है, दोनों अलग अलग चीज है। सर मिनरल को भी तो हम सोडा बना सकते हैं। अब बना सकते, एक्सेप्शन तो बहुत सी चीजों का है, सिंपल सा देखो, बेसिक से जाओ, बिल्कुल बेसिक से। अगर एक्सेप्शन पे जाओगे फिर तो रीजनिंग में, हाँ भाई इसमें ऐसा भी हो सकता है, ये केमिस्ट्री। सर एक्सेप्शन ही मतलब पॉसिबल तो है कि हमारा सोडा वाटर मिनरल वाटर हो। अच्छा, सोडा वाटर को, अगर मिनरल को तुमने सोडा वाटर बना दिया, फिर वो मिनरल थोड़ी रहा, वो तो सोडा बन गया ना। सर मिनरल्स तो उसमें तब भी रहेंगे ही। लेकिन उसको कहोगे मिनरल वाटर या सोडा वाटर बोलोगे? कोई तुमसे मांगेगा मिनरल वाटर दे दो तो उसको सोडा दोगे? सही बात है सर। फिर तो सोडा बन गया ना। चलो अगले Yes, sir. क्वेश्चन पे चलते। आइडेंटिफाई द डायग्राम द बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग द गिवन। कोई बोलेगा भाई उल्टी हो रही, सोड पानी देना मिनरल वाटर, उसको सोडा पकड़ा दिए। ट्री ब्रांचेस रूट्स, ये तो सभी का सही आंसर आएगा 26 का। बॉम्बे। बॉम्बे, D. Yes, sir. सभी का बॉम्बे, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बॉम्बे तो आगे बढ़ जाते, क्योंकि ब्रांच और रूट अलग अलग हो गई और दोनों ट्री के पार्ट हैं, और दोनों की ट्री में ही आते हैं। कोई अच्छा सा देखते हैं। अच्छा ये देखना 35th। सो कई बार पेपर में एफकेट ने पूछा है, डॉल्फिन हमारी मैमल है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और फिश जो होती है, तो फिश के अंदर नहीं आती है मैमल्स। इफ आई विल राइट वन थिंग, सभी लोग इस चीज को सुन लो एक बार ध्यान से। आई एम राइटिंग 3 वर्ड्स, वन इज फिश, अनदर इज डॉल्फिन। और जो पानी में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्पेलिंग सही नहीं, अरे एक वो होते ना जो एक जमीन पे रहते, एक पानी पे रहते, और एक कुछ एम्फीबियन, तो दोनों जगह रहते। Yes, sir. रेप्टाइल। Aquatic. एक्वेटिक, एक्वेटिक स्पेलिंग देख लेना, हो सकता है गलत लिखी हो, लेकिन सेंस पे चले जाना। Yes, sir. Okay, so if you will get these three, if you have to make the diagram, Venn diagram, how you will make it? Fish, dolphin, aquatic. Sir, option A. अरे ऑप्शन ए कौन से एक मिनट, कहाँ यहाँ पे पर? given 35th का, diagrams given है। Yes, sir. 35th का dolphins ऑप्शन को है। अगर लेके चले। ओके, दिस यस 35th का ऑप्शन ए चल जाएगा, बिकॉज एक्वाटिक or whatever lives inside the water, they will be aquatic. Now in the aquatic, fish is different thing, dolphin is different thing. Dolphin हमारी होती है mammals, हमेशा याद रखना ये mammals है, कभी भी इसको fish की कैटेगरी में मत डाल देना, लगती है कि भाई ये मछली है, लेकिन वो mammals है। ओके, ये अंडे नहीं देती, fish अंडे देती है, ये ध्यान रखना। ओके, सो और अगर इसी में if I will mix the crocodile, तो ये कहाँ बनाओगे? आई एम मेकिंग बाय द 3 डिफरेंट कलर, ब्लू कलर से बनाता हूं मैं, अनदर आई एम मेकिंग बाय ग्रीन कलर, अनदर आई एम मेकिंग बाय द येलो कलर। सो बताइए कौन सा रहेगा? ब्लू, ग्रीन, ग्रीन वन, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ग्रीन, ठीक है, ग्रीन हमारा क्रोकोडाइल का हो जाएगा, ठीक है।
चलो 35th पे आ जाओ फिर वापस। 35th के बाद 34th पे जाना है। 35 का ए, आगरा। A. 35th का ए करेक्ट। ओके, क्या पूछ रहा था? रिलेशनशिप अमंग द लैंग्वेज, जापानी और जर्मन। ओके, लैंग्वेज जर्मन अलग है, जरा जापानी अलग है, और दोनों लैंग्वेज के अंदर आते हैं। सो ये हो गया लैंग्वेज, एक जर्मन हो गया, एक जापानी हो गया। 34th, ये डिविडेंड क्या होता है? तुमने पैसा लगाया, उसका हिस्सा कुछ शेयर आता है ना, शेयर का प्रॉफिट। शेयर मार्केट में पैसा लगाओ तो जैसे कंपनी को ग्रोथ होती तो तुम्हारे शेयर के हिसाब से तुम्हें पैसा दे दिया जाता, तो उसको डिविडेंड बोलते हैं। जितना तुमने ये तो पैसा डी हो लगाया जाएगा। डी हो जाएगा, करेक्ट। क्योंकि डिविडेंड इज डिफरेंट थिंग, बोनस इज डिफरेंट थिंग, लेकिन दोनों क्या है? प्रॉफिट है। ओके, सो इनसाइड दिस विल बी द प्रॉफिट। एक हो जाएगा डिविडेंड एंड वन विल बी द बोनस। बोनस हमारी डिफरेंट चीज है। जैसे आपने कोई काम किया, अच्छा काम कर दिया तो आपको बोनस मिल जाए, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। भाई कंपनी का ओनर खुश हुआ, मुकेम्बो खुश हुआ तो मिल जाएगा, और नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। लेकिन डिविडेंड, if company is growing then they will need to give you, this is a legally binding. So dividend is different thing, bonus is different thing. बोनस मालिक की दया पे चलता है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। 36 ओके, ये इफ यू विल सी समथिंग रिलेशन दिया गया है यहाँ पे ग्रेजुएट। जैसे कल हम वेन डायग्राम में देख रहे थे ना कि ये डेटा बताएगा जो पूरे ग्रेजुएट्स हैं, जो ये वाला बताएगा इफ द बी पार्ट विल बी टेलिंग दैट ओनली ग्रेजुएट्स। डी पार्ट क्या बताएगा? जो ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं साथ साथ। और जी पार्ट कौन बताएगा? जो ऑफिसर भी हैं, ग्रेजुएट भी हैं और पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। सो जो जिस चीज की कॉमन में आ रहा है वो उस चीज को डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। सो लेट्स सी द 37th क्वेश्चन। 37th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? Venn diagram and find the reason represents the person who are educated and employed but not confirmed in the job. ये चाहिए इनको, educated and employed but not confirmed in the job. कैलकाटा सी। सी, अच्छा ऑप्शन सी, बी एंड डी। ओके, चलो देखना है। एजुकेटेड बट नॉट कंफर्म मींस वी डोंट वांट द ट्रायंगल, तो ट्रायंगल तो नहीं चाहिए, तो इसके बाहर का चाहिए एरिया। लेकिन एजुकेटेड भी चाहिए, एम्प्लॉयड भी चाहिए। सो एजुकेटेड इज दिस सर्कल, यानी इस सर्कल के अंदर होना चाहिए। एंड वी वांट एम्प्लॉयड, सो एम्प्लॉयड यानी इस के अंदर भी होना चाहिए। तो वो बचा हमारा डी एंड बी। सो आंसर हो गया सी इस क्वेश्चन का, करेक्ट। ओके, सो ऐसे ही इफ यू विल सी द 36 क्वेश्चन, यहाँ पे क्या था? विच पार्ट रिप्रेजेंट ऑल ऑफिसर्स who are graduated and post graduated. Okay, graduated and post graduated officers बताना है। So officers, सर ऑप्शन बी। option B, that is the D. नहीं सर, सर जी, सर ए, ऑप्शन ए। Option A. Okay, option A, answer will be G, because these are the officers who are the graduate and post graduate. ठीक है। So यहाँ पे just most of the part of the Venn diagram हमने कवर कर लिया है। चलो प्रीवियस क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ 2-4। थर्ड क्वेश्चन, पहले एफकेट में 5 क्वेश्चन आते थे डायरेक्टली, 5 वर्ड्स दे देते थे, 5 मींस 3 वर्ड्स देके 5 क्वेश्चन देते थे, बिल्कुल इजी रहते थे, 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाते थे। अब उन्होंने 3 कर दिए ये पिछली बार से। क्या आंसर है थर्ड का? सर बी। बी, चलो देखते हैं। ओके, एक का सी आ रहा, एक का बी आ रहा। अच्छा ये बताओ, अगर कोई किडनैपर है तो वो एंटी सोशल तो है ही ना, समाज का तो विरोधी है, इसीलिए तो किडनैपिंग कर रहा। जो जेब कतरा है दैट इज ऑल्सो एंटी सोशल। सोशल यानी सोशल को है जो समाज की भलाई करे। ये दोनों क्या है? एंटी सोशल है। तो अब ये बताइए, कोई अगर जेब काट रहा तो वो किडनैपर भी तो हो सकता, और जो किडनैपर है वो जेब कतरा भी तो हो सकता। मींस दे कैन बी द कॉमन। सो आंसर विल बी बॉम्बे फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। Okay, any one of you having doubt in this, answer will be B for this question. Just anti social हो गया ये, और पिक पॉकेटर हो गया एक, और दूसरा वाला हो गया हमारा किडनैपर। चलो एक और देखते हैं 2018। अब यहाँ ये मत बोलना कि भाई कुछ पुलिस वाले भी चोर होते हैं, ये एक्सेप्शन मत लेना। तो कोई ये मत बोल देना कि पुलिस वाले भी क्रिमिनल होते हैं, लेकिन we will not take that exception.
पुलिस का काम ही है इनको दूर रखना। सर ए करेक्ट, ये हमारे पुलिस वाले हो गए भाई, और बगल में हो गए क्रिमिनल, क्रिमिनल के अंदर आ गया थीप। ये ध्यान रखना, वरना कई बार क्या करके आ जाते हम लोग, ये पुलिस ये लगा के आ जाते कुछ पुलिस वाले भी क्रिमिनल होते हैं। नहीं, ये इनकरेक्ट होगा। दिस विल बी पुलिस, दिस विल बी क्रिमिनल, इनसाइड द क्रिमिनल ये होगा थीप, क्योंकि बाकी क्रिमिनल भी तो क्रिमिनल के अंदर आएंगे, चोर जेब कतरा भी क्रिमिनल के अंदर आएगा। ओके, which of the following diagram correctly represent the relation between animal, dog and pet? B. B, सर सी। C, सर सी ही होगा। C ही होगा। अच्छा, B जिसने दिया ये बताइए, आपने ऐसा कौन सा सारे डॉग पेट होते क्या, या सारे पेट चीज ही डॉग होते? जो भी पालतू है वो केवल कुत्ता ही होता है क्या? नहीं, पेट जो है वो और कुछ भी हो सकता है, और कोई सारे डॉग पालतू नहीं होते, कुछ डॉग गली के भी होते हैं, और मींस ऑल डॉग्स आर नॉट पेट। सो यहाँ पे इन दोनों में रिलेशन हो जाएगा ये, लेकिन जो भी पेट है, जो भी डॉग है, वो एनिमल तो है। सो दिस विल बी द एनिमल, आंसर विल बी सी। ठीक है, डाउट क्लियर सभी को?